چھوٹے حکومت دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم لانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرا دی ہے۔ دکاندار چاہیں تو موجودہ ٹیکس نظام میں بھی رہ سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پہلے سے ادا شدہ ہولڈنگ ٹیکس قابل ایڈجسٹ ہوگا۔ ٹیکس دہندگان پر بوجھ کم کرنا ہے۔ ٹیکس دہندگان ٹیکس نظام میں آسانی چاہتے ہیں۔ اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے دکانداروں کا آڈٹ نہیں ہوگا۔ سالانہ 20 کروڑ سے کم آمدن والے دکانداروں پر اسکیم کا اطلاق ہوگا۔ مستقل رجسٹریشن نہ کرانے پر 50,000 سالانہ جرمانہ ہوگا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم لانے کا اعلان۔ حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرا دی۔ دکاندار چاہیں تو موجودہ ٹیکس نظام میں بھی رہ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پہلے سے ادا شدہ ود ہولڈنگ ٹیکس قابل ایڈجسٹ ہوگا۔ ٹیکس دہندگان پر بوجھ کم کرنا ہے۔ ٹیکس دہندگان ٹیکس نظام میں آسانی چاہتے ہیں۔ اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے دکانداروں کا آڈٹ نہیں ہوگا۔ سالانہ 20 کروڑ سے کم آمدن والے دکانداروں پر اسکیم کا اطلاق ہوگا۔ مستقل رجسٹریشن نہ کرانے پر 50,000 سالانہ جرمانہ ہوگا۔ سولر پر بھی آپ کا خرچہ، گرڈ کی فیس بھی آپ کی ذمہ داری۔ پاور ڈویژن نے صنعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ گرڈ سے بجلی کے کم استعمال پر فکس چارجز عائد کرنے کا فیصلہ۔ منصوبہ آئندہ چند ماہ میں نافذ کیے جانے کا امکان ہے۔ فیصل آباد کے صنعت کاروں نے فیصلے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ بولے آئی پی پیز کا پیٹ بھرنے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ صنعتی سولر صارفین کے لیے خبر، کم بجلی استعمال کرنے والی صنعتوں پر فکسڈ چارجز کی تیاری۔ پاور ڈویژن نے صنعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ گرڈ سے بجلی کے کم استعمال پر صنعتوں پر فکسڈ چارجز عائد کرنے کا منصوبہ تیار۔ گرڈ سے بجلی کے زیادہ استعمال پر رعایت ملے گی۔ کم استعمال پر بھاری فکسڈ چارجز عائد کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ منصوبہ آئندہ چند ماہ میں نافذ العمل ہوگا۔ سینئر وائس چیئرمین پی ایچ ایم اے احمد افضل اوان کا اظہار تشویش۔ بولے آئی پی پیز کا پیٹ بھرنے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ صنعت کار ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حکومت نے اپنی روش نہ بدلی تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ ہمارے پہ سولر کا بوجھ بھی ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پہ جو لاز آپ نے سولر کے چینج کیے، آلریڈی ہم اس کے کانسیکوینسز فیس کر رہے تھے۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے بجٹ میں ہمارے اگر ہم انڈر یوٹیلائز کریں گے اپنی الاٹڈ انرجی کیپیسٹی کو تو ہمیں اس کے بھی فکس چارجز پے کرنے پڑیں گے۔ یہ کس کنٹری میں ہوتا ہے؟ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ بڑی ہی ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کے ایسے اقدامات صنعت کاروں کو مایوسی کے اندھیرے میں دھکیل دیں گے۔ کیمرامین محمد معید کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ بجٹ سے پہلے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بار۔ بجلی 1 روپے 19 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اپریل کے بلوں پر اطلاق۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی۔ ادھر سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 99 پیسے یونٹ سستی۔ اطلاق اگست کے بلوں میں ہوگا۔ صارفین کو 67 ارب 17 کروڑ 30 لاکھ کا ریلیف ملے گا۔ بھائی جان یہ حال ہے کہ غریب بندے کی نا بس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بل دینے سے اب سمجھ لو اپنے کپڑے بیچ کر انہوں نے بل دینے ہیں بجلی کے۔ جو حالات انہوں نے کر دیے ہوئے ہیں کے ریٹس کے، ایک بندے کے 30 یونٹ ہے اس کا ہی میں 3600 بل دیکھا ہے۔ 30 یونٹ کا بل 3600 ہے۔ اور اتنا برا حال ہے کہ لوگ اتنے آنگ ہیں، کوئی اپنا کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، بیچ کے نا بل پے کر رہے ہیں۔ سر بل جڑے نے بل بہت زیادہ ہے نا، یعنی کہ بھیجے نے غریب آدمی جڑے میں بل نہیں دے سکتے۔ یہ بھی انہوں آن کے دسیے کچھ کریے تو یہ نہیں مانتے۔ جی اسی ڈیمانڈ نوٹس 15,000 ہوں 30,500 کر دیتا۔ ہمیں حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی، بل کبھی کم کرتی ہے کبھی زیادہ کرتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اس چیز کا۔ ان کو چاہیے کہ ایک فکس ریٹ ہونا چاہیے، کسی غریب کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہر بندہ آسانی سے زندگی کو بسر کر سکے۔ اسی تو آپ پریشان ہیں جی، ساڈے تے گھر دا بل ایسی آپ نے کرایا ہے، دیکھو کیویں کرانا کیویں نہیں ہے، کوئی پوزیشن دی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ حالات ملک ویسے ہی خراب ہوئے پے ہے، لوگوں کو کھان پین نہیں پورا ہو رہا ہے، بل تو پھر دور دی گل۔ بجلی صارفین کو کبھی تکلیف تو کبھی ریلیف۔ نیپرا نے پہلے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے نام پر بجلی کا جھٹکا، پھر سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ریلیف بھی دے دی۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 19 پیسے مہنگی، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمت 1 روپے 99 پیسے فی یونٹ کر دی گئی۔ صارفین کہتے ہیں حکومت بجلی کی قیمت میں ریلیف فراہمی کے عملی اقدامات کرے۔ چند کے شہریوں کو ایک بار پھر مہنگی بجلی کے بوجھ کا سامنا۔ نیپرا نے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپے 19 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ بعد ازاں سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ
बिजली ₹1.99 की यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा हुकाम के फैसलों से जंग के शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सार्फिन का कहना था कि एक तरफ रिलीफ दिया जाता है तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ तरीके इजाफी रकम वसूल की जाती है। इस साल नहीं तो हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट एक तरफ से बिजली का कह रही है कि ₹1 कम किया और दूसरी से वही टैक्स लगा दिया, और लोगों ने अपने लाखों रुपए लगाकर सोलर लगाए और कर्ज उठाकर लगाए, किसानों ने, ठीक है ना, और इन्वेस्टर ने, जो भी है, जिस तरह एक छोटा ताजर है। लेकिन आए रोज़ गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं, कभी सोलर पे टैक्स, कभी नेट मीटरिंग में टैक्स, ठीक है ना, तो ताजर बिरादरी हमारी पहले ही बहुत परेशान है। शहरियों का कहना है कि बिजली के बिलों में मुख्तलिफ टैक्सेस, सरचार्जेस और दीगर वसूलियां अब भी इन पर भारी पड़ रही हैं, जिसके बाइस बिलों में कोई वाज़ेह कमी महसूस नहीं हो रही। हुकूमती ऐलानात के बावजूद अमली तौर पर रिलीफ आवाम तक मुंतकिल नहीं हो रहा। हुकूमत को चाहिए भी बिजली के बिलों में रियायत करे, कुछ तो रहम करे ना। हुकूमत बहुत महंगाई कर रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बिजली की कीमतों में हकीकी और पायदारी कमी की जाए, गैर जरूरी टैक्सेस और इजाफी चार्जेस खत्म किए जाएं ताकि महंगाई के इस दौर में आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। बढ़ते हुए घरेलू अखराजात के बाइस बिजली के बिल अदा करना आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। मुल्की कपास की मजमूई काश्त माहिरीन के मुताबिक 1967 के बाद कम तरीन रिकॉर्ड की गई। सिंध और पंजाब में हदफ पूरा ना हो सका, जिसके बायस कम तरीन काश्त हो सकी। अदाद शुमाल सामने आने पर टेक्सटाइल सनतकार परेशान। चेयरमैन काउंसिल फॉर पावरलूम एसोसिएशन वहीद खालिक नामे कहते हैं, कपास की खुद मुख्तारी खत्म होने के साथ दरामदी बिल पर बोझ बढ़ रहा है, जो किसी तौर पर फायदेमंद नहीं। 14 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस करने वाला पाकिस्तान जो है आज सिर्फ 5 से 6 मिलियन बेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। जो है कंजम्पशन वो भी 14 मिलियन के ऊपर है। तो ये सारा फेलियर है हमारे इस निज़ाम का, हमारे अदारों का, हुकूमत का, कि वो किसान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। जब वो कॉटन 14 मिलियन बेल्स लगाते थे उस वक्त उनको पैसे मिलते, किसान से कपास उठा लेते थे, वो पैसे भी उनको जिस तरह शुगर मिल्स वाले देते उस तरह मिलते थे, तो किसान का इंटरेस्ट कम हो गया। और आज जो कॉटन बेल्ट थी पाकिस्तान की, वहाँ के ऊपर शुगर केन का एक बेल्ट लग गया, शुगर मिल्स लग गई हैं, तो अब मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए। तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को कॉटन इंपोर्ट करने पे लग जाते हैं। हमारी पावरलूम इंडस्ट्री के तमाम धागे जो हैं, जो कपड़ा फैब्रिक पहनने वाला है, 40 सिंगल, 52, 60 और 80, ये सारे का सारा अब इंपोर्टेड कॉटन से बनता है। हमारा कॉटन की जो है वो स्टेपल काम है, इसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। हमारे जो रिसर्च, जो कॉटन इंस्टीट्यूट है रिसर्च के, इनको काम करने की, जगाने की ज़रूरत है, हुकूमत को जगाने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा कि अपने काश्तकार को आज भी अगर आप इंसेंटिवाइज करेंगे तो यकीनन आगे आएगा। इससे हमारी इंडस्ट्री का भी प्रोटेक्ट हो सकेगी और पाकिस्तान के सुनहरे दिन आ सकते हैं कि ये वाकई एक वाइट गोल्ड है। जंग के आउटसोर्स इलाजगाहों में अद्वियात और टेस्टों का फकदान। बुनियादी और दही मराकज़ सेहत से मरीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किए जाने लगे। एमरजेंसी ओपीडी और लेबॉर्ट्री में मरीजों का रश पड़ गया। खुफिया रिपोर्ट पर कमिश्नर फैसलाबाद ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद को खुफिया रिपोर्ट से मुतल्लिक इंक्वायरी के अहकाम जारी किए गए। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि बुनियादी मराकज़ सेहत और दही मराकज़ सेहत जिन्हें आउटसोर्स किया गया है, वहाँ पर अद्वियात और टेस्टों का फकदान है, जिसके सबब मरीजों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जंग मुंतकिल किया जा रहा है। इसलिए इंक्वायरी की जाए और इस रिपोर्ट की कमिश्नर डिवीजन फैसलाबाद ऑफिस में जमा करवाई जाए। फैसलाबाद में फेडमिक में गड्ढे की सफाई के दौरान हादसा पेश आया। जहरीली गैस के बायस 4 वर्कर्स नाबाक हो गए। आफायतुल्लाह गड्ढे की सफाई में मसरूफ थे। जहरीली गैस में दोनों वर्कर्स की हालत गैर हो गई। हसन खान और दिलावर खान साथियों को बचाने के लिए गटर में उतर गए। चारों मुलाजमीन जहरीली गैस के बायस दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम ने लाशें गड्ढे से निकाली। अपडेट करें फैसलाबाद से अफसोसनाक वाकया है। फेडमिक में गड्ढे की सफाई के दौरान हादसा पेश आया। जहरीली गैस के बायस 4 वर्कर्स जाँ बहक हो गए। रिफतुल्लाह और कफायतुल्लाह गड्ढे की सफाई में मसरूफ थे। जहरीली गैस से दोनों वर्कर्स की हालत गैर हो गई। हसन खान और दिलावर खान साथियों को बचाने के लिए गड्ढे में उतर गए। चारों मुलाजमीन जहरीली गैस के बायस दम तोड़ गए। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय हाउसिंग बैरिस्टर सुल्तान बाजवा का दौरा है फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रर ज़बी के हमरा कमिश्नर ऑफिस में आला सतह इजलास की सदारत की। फैसलाबाद ने मानसून इंतजाम पर ब्रीफिंग ली। हॉर्टिकल्चर एजेंसी को पार्कों की हालत संवारने का टास्क दे दिया गया।
पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को तरक्याती स्कीमों के मयार की इंस्पेक्शन का हुक्म दिया। अपडेट करें फैसलाबाद से सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय हाउसिंग बैरिस्टर सुल्तान बाजवा का दौरा फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी के हमरा कमिश्नर ऑफिस में आला सतह इजलास की सदारत की। फैसलाबाद में मानसून इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। हॉर्टिकल्चर एजेंसी को पार्कों की हालत संवारने का टास्क दिया। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को तरक्याती स्कीमों के मयार की इंस्पेक्शन का हुक्म दिया। अपडेट करें सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय हाउसिंग बैरिस्टर सुल्तान बाजवा का दौरा फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद के हमरा कमिश्नर ऑफिस में आला सतह इजलास की सदारत की। वासा फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबों पर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। एमडी वासा साकिब रजा का जेर जमीन वाटर स्टोरेज टैंक साइट का दौरा। बोले 30 जून से कबल तामीराती काम हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। एमडी वासा फैसलाबाद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डीएमडी इंजीनियरिंग शेब ज़िया के हमरा तामीराती कामों का जायजा लिया। उनका कहना था सीएम पैकेज के तहत जारी तमाम तामीराती काम इसी साल मुकम्मल किए जाएंगे। जेर जमीन वाटर स्टोरेज टैंक इसी मानसून में पानी स्टोरेज के काबिल होंगे। एमडी साकिब रजा ने साइट पर तामीराती काम 24 घंटे जारी रखने की हिदायत भी जारी की। सफाई सुथराई इंतजाम कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात। फैसलाबाद में सफाई मंसूबे के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में होने वाली खसूसी मीटिंग में सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने ईद उल अज़हा पर बेहतर काम को सराहा। कॉन्ट्रैक्टर्स को काम में मज़ीद बेहतरी लाने का टास्क दिया गया। सूबाई और वज़ीर का कहना था सुथरा पंजाब अथॉरिटी प्रोग्राम किसी भी हुकूमत में जारी रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स दिल लगाकर काम करें और सफाई में बेहतरी लाएं। सूबाई वज़ीर ने कॉन्ट्रैक्टर्स को बेहतरीन काम पर शील्ड से भी नवाजा। छह माह कबल डिवीजनल और ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के लिए शुरू किया गया प्लांट फॉर जनरेशन मनसूबा कमिश्नर की तब्दीली के बाद सर्दखाने की नज़र हो गया। मनसूबे के तहत जिला भर में 10 फीट कद वाले 4 लाख पौधे लगाए जाना थे। हॉर्टिकल्चर एजेंसी की गफलत ने फलाही मनसूबे सर्दखाने में डाल दिए। 6 माह कबल डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से शुरू प्लांट फॉर जनरेशन मुहिम सर्दखाना की नज़र हो गए। प्लांट फॉर जनरेशन प्रोग्राम के तहत हॉर्टिकल्चर एजेंसी को 4 लाख पौधे लगाने की हिदायत की गई थी। प्लांट फॉर जनरेशन के तहत 10 फीट से बड़े पौधे लगाए जाने थे। प्लांट फॉर जनरेशन के तहत 19% पौधे लगाए जा सके। कमिश्नर की तब्दीली से फलाही प्रोजेक्ट प्लांट फॉर जनरेशन के तहत कोई पौधा नहीं लगाया गया। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट हुकाम मुताबिक माली साल के आखिरी माह तक जारी रहने वाली तमाम तरक्याती स्कीमों की फहरिस्त तलब कर ली गई। माली साल का इख्तिताम है और इस दौरान मुकामी हुकूमतों की जानिब से जो भी फंड्स लगाए जा रहे हैं उनकी तफसीलात तलब की जा रही हैं। इसी तरह से मुकम्मल होने वाली और जारी रहने वाली स्कीमों का डेटा भी शेयर किया जाएगा। साथ में उनकी मुद्दत का तयन करना भी लाजमी होगा। मौसम गर्मा की तवील छुट्टियों में स्कूलों की इमारतें खस्ता हाल और बसीदा होने का खदशा। स्कूल सरबराहान को हफ्ते में एक से दो दिन स्कूल के तमाम कमरों को सारा दिन खुला रखने के अहकाम जारी किए गए। मुसलसल 3 माह कमरे बंद रहने से इमारतें खस्ता हाल हो सकती हैं। डीओज, डेप्यूटी डीओज और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को हदायत की है हर स्कूल को हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल खुलवा कर कमरों को हवा लगवाई जाए और स्कूलों में लगे पौधों की मुनासिब देखभाल की जाए। सीईओ एजुकेशन अब्दुल करीम का कहना था मुसलसल 3 माह कमरे बंद रहने से इमारतें खस्ता हाल हो सकती हैं। सीईओ एजुकेशन अब्दुल करीम का डीईओज, डेप्यूटी डीओज और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को स्कूल विजिट करने का हुक्म। हर स्कूल को हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल खुलवा कर कमरों को हवा लगवाई जाए। छुट्टियों में स्कूल में लगे पौधों की मुनासिब देखभाल की जाए। छोटे स्कूल जहां दर्जा चहारम का कोई मुलाजिम नहीं वहां स्कूल खुले रखने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। जंग में सिटी 41 की निशानदही पर महकमा तालीम का बड़ा एक्शन। आफ्टरनून स्कूल्स के साथजा के वाजिबात अदा कर दिए गए। सीईओ एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली के अहकामात पर 3.5 करोड़ के वाजिबात जारी किए गए। तमाम रकूम मुतल्लिका उस्तादजा के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई हैं। आफ्टरनून हाई स्कूलों के उस्तादजा के वाजिबात 9 माह से ज़ेर अल्तवा थे, जबकि मिडिल स्कूलों के अमले को भी 5 माह से वाजिबात अदा नहीं हो सके, जिसकी वजह से तदरीसी अमले को माली मुश्किलात का सामना था। मामले पर निशानदही के बाद महकमे ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम बकाया जात क्लियर कर दिए। सीईओ एजुकेशन का कहना था उस्तादजा के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ महकमे की अव्वलीन तरजीह है।
مستقبل میں واجبات کی بروقت ادائیگی کے لیے مربوط نظام بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ اب اساتذہ کو اپنے جائز حق کے لیے طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ چنیوٹ سول ڈیفنس ملازمین تنخواہوں سے محروم، تمام ملازمین میں تنخواہیں مل گئیں مگر چنیوٹ میں نہ مل سکیں۔ حکومتی ہدایات پر تمام اداروں کو عید سے قبل تنخواہیں جاری کی گئیں۔ سول ڈیفنس چنیوٹ کے ملازمین کو ماہ مئی کی تنخواہیں تاحال ادا نہ کی گئیں۔ سول ڈیفنس رضاکاروں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ بروقت تنخواہیں جاری نہ ہونے سے دفتر ملازمین کی سستی شامل ہے۔ تمام اضلاع میں تنخواہیں ملنے کے باوجود ماہ مئی کی تنخواہ نہ مل سکی۔